چلے ساس بھی دے او بندی کی باری. السلام علیکم سنی بھائیوں، میں نے اس ناواقف وداؤٹ علم بغیر علم لا علمی دیوبندی سے بات کی تھی، اور یہ ایسے دیوبندی ہیں جنہیں اپنے گھروں ہی کی خبر نہیں ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، جبکہ یہ سب کتابیں موجود ہیں. میں نے اسے ایک ڈیفرنس بھیج دیے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہدایت پانا قسمت والے کا کام ہوتا ہے. یعنی وما علینا الا البلاغ، میرا کام تھا صرف اس کو بتانا، اور اللہ کا کام تھا اس کو منانا، اور قسمت والے کا کام ہے ماننا. میں نے اسے ایک عبارت بتائی تھی کہ نبی کا خیال کو گائے بیل گدھے کے خیال سے برا بتایا گیا، تو اس نے اس کی صفائی پیش کری. وہ دوسری آڈیو میں والی آڈیو کو ڈالوں گا، اس میں کہتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے کہا ہے کہ نبی کا خیال ایسے نہیں آنا چاہیے کہ نبی کے لیے نماز پڑھتے ہو. تو میں نے بولا تو گائے بیل گدھے کے لیے نماز پڑھ سکتے ہو؟ بس سوچ سمجھ کے تو بولو. کتنی گندی منطق لگاتے ہیں یہ وہاں بھی. کہتا ہم اس لیے کہتے ہیں نبی کا خیال نماز پڑھنا نبی کی طرف معاذ اللہ برانی. آڈیو سماعت فرمائیں. آمین جزاک اللہ خیر. ہلو ہلو کون؟ ہلو ارواز بھائی بول رہے ہیں؟ ہاں جی جی 2 منٹ بات کرنی تھی، آپ ہے نا آپ کے پاس؟ ہاں جی پہلے جی 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 یار ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں سنی ہوں ارواز بھائی. ہاں میں سنی ہوں. سنی کون؟ سنی میرا نام سالم ہے اور میں ہاں ہلو آواز نہیں آ رہی؟ ہاں بتا. تو میں یہ بول رہا تھا میرا نام سالم ہے اور میں سنی ہوں، سنی جماعت سے. جی میں یہ بول رہا تھا کیا ہم لوگوں میں اختلاف دور نہیں ہو سکتا؟ کب تک لڑائی چلے گی؟ مطلب کب تک ہم لوگوں میں لڑائی چلے گی یہ پوچھ رہے تھے سر. لڑائی چاہیے بھائی؟ یہی ہم تمہیں گالی دیں تم ہمیں گالی دیں، کہ تھوڑی بہت محبت سے بات نہیں ہو سکتی؟ جو چلے گا محبت سے بات کرو. جی جی ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سنیوں کے گروپ ہے، کچھ سنیوں کے یوٹیوب پہ چینل ہے، کچھ دیوبندیوں کے، تو وہ ایک دوسرے کی ویڈیو اولا تکا کوئی غلط فوٹو ویڈیو سے بنا کے لگا کے ڈالتے ہیں. تو جی تو ہم یہ بول رہے تھے سر کہ ایسے جیسے کوئی آپ کو اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت پہ اگر اعتراض ہو تو اگر قرآن حدیث کے روشنی میں اور اجماع کی روشنی میں جواب دیا جائے تو ٹھیک ہے. اور ہم ایک سوال ہم کریں گے، ایک سوال آپ کریں گے، کیا آپ رکھتے ہو جواب دینے کی؟ دیکھو سنو، جی جی ایک سوال آپ کریں یا ایک سوال میں کروں، اس جی کے لیے ہونا چاہیے آدمی سامنے، فون پر نہیں. آپ جی جی آگے ہوں گے 4 آدمی ادھر 4 ادھر، تو پھر فیصلہ ہوگا. جب ہم دونوں اگر بات کرتے رہیں گے تو فیصلہ تو آ نہیں نہ سکے. جی میں یہ بول رہا تھا کہ ایسے ہم تم کو ابھی فون ہم نے جو آپ کی وائس سنی تھی، آپ اس میں بہن کر کے گالیاں دے رہے تھے یار. تو بولا اتنی پیاری گفتگو کرنے والا یہ بول کیسے رہا یار؟ ایک گالی کی سنا دو، ایک گالی. ہاں گالی کہتے کس کو آپ کو معلوم ہے کچھ؟ نہیں آپ بتا دیں سر. آپ بتا رہے نا گالی بکی، تو آپ بتا دیں کون سی گالی بکی ہے میں نے. نہیں آپ اس میں یہ کہہ رہے تھے بینچ تو وہ اچھا نہیں لگا. ایک وائس چیز میں آپ میں سن رہا تھا تو اس پر ایک کوئی نور حسن ایک آشوش سے کاش آپ بات کر رہے تھے، تو اس کے اندر وہ بھی بول رہا تھا تم بھی بول رہے تھے، لیکن وہ تو بول رہا تھا وہ جو اس کے سنو ایک گالی بتا دو میں نے گالی بکی ایک بتا دو. بینچ تم لوگ بینچ کر کے آپ نے کئی بار بولا ہے سر، 3 بار قریب اس نے. آپ کے پاس اگر ریکارڈنگ ہو تو آپ سن سکتے ہیں سر. اتنی ہے گالی بکی، اب تم سے بات کر رہا ہوں، اب دیکھنا میں کتنی گالی بکتا ہوں. ٹھیک ہے تو گالی کو کہو گے سر تو فون کاٹ دو، میں بات نہیں کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں اب تم سے بات کر رہا ہوں، تم دیکھنا میں تم سے کتنی گالی بکتا ہوں، جب تمہیں معلوم پڑ جائے گی. نہیں یار میں تو بول رہا ہوں محبت سے بات نہیں ہو سکتی، میں نے پہلے ہی بولا اس سے پہلے.
अरे भाई तुम बात ही ना समझ पा रहे यार, बता मैं क्या कहने जा रहा हूँ। यानी मेरे उन्हें इतनी गाली लग गई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम अंदाज लगाना मैं कितनी गाली करने वाला हूँ, ठीक है? अच्छा जी, तो मैं सर एक बात बोलूं? हाँ जी। जी मैं एक बात बोल रहा हूँ, क्या हमारे आका करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल अगर ताजीम के साथ नमाज में आ जाए तो नमाज बेकार हो जाती है? ये हाँ जी, सब सुन चलो, एक मिनट सुन ले, कि नमाज बेकार हो जाती है हमारे नबी का ख्याल आने से। कैसी आ रही है आवाज? बचपन की आवाज आ रही है आपके बच्चों की? अभी क्या आ रही है? एक मिनट, बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा हेलो, हाँ बोलो। अभी क्लियर आई? हाँ जी। जी, तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे आका करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज बेकार हो जाती है। तो गाय और बैल गधे के ख्याल से नमाज हो जाती है। क्या आपको ये सुनकर अच्छा लगा? नहीं, बहुत गलत बात है ना सर। अच्छा, हम अपने आका को जब याद करते हैं तो ताजीम से याद करते हैं क्या बेअदबी से? ताजीम से करते हैं ना। तो ये तहजीरुल नास है, सिरात मुस्तकीम इस्माइल देलवी साहब की, इसके अंदर ये लिखते हैं कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, और नबी से अच्छा तो ख्याल ये है कि बीबी के साथ हम बिस्तरी का ख्याल आ जाए, गाय बैल गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी। नबी का ख्याल आने से नमाज बातिल हो जाएगी, क्योंकि नबी का तुम ख्याल ताजीम के साथ करोगे तो नमाज बेकार हो जाएगी। हम मुसलमानों का तो ये अकीदा है सर, हम नबी को जब भी याद करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ताजीम ही होती है। बेअदबी तो ना जाने कितनी दूरी पे रखी हुई है नबी के नाम से पहले। नाम आ जाए तो हम पढ़ लेते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सर ये बहुत बेकार बात है सर। यही मसला है, कुछ ऐसी ही बातें हैं जिस पर अहले देवबंद से सुन्नियों का इख्तिलाफ है। हम देखो आवाम में अहले देवबंद की आवाम को हम किसी को काफिर नहीं कहते, ना उन्हें बुरा कहते। जो इन इबारतों का दिफा करता है तो सर उसके लिए हम थोड़े ही गलत अल्फाज इस्तेमाल। अच्छा तुम बताओ, हमारे नबी के लिए ये लिखा गया हो कि नबी माज़अल्लाह गधे के ख्याल से ज्यादा बुरा ख्याल नबी का ख्याल है, तो अच्छा लगा आपको सर? यार मैं एक बात पे हैरत हूँ यार, आपकी जी हाँ जी बोलिए सर, बोले। क्या चीज है, एक आम आदमी ने लग चुके, एक आलिम आदमी कैसे लग गया, ये बात पे कुछ गौर करा आपने? कैसे आप बोले? ये जो बात आपने कही है हाँ कि नबी के ख्याल से बेहतर तो गधा बदा का ये ख्याल है, ये बेहतर। एक आम आदमी ना पैसे ना ही आम आदमी लिख सके इस बात को, एक आलिम कैसे लिख गए इस बात को? तो हाँ वो ही तो बता रहा हूँ सर। ये तो एक आलिम नहीं जी क्या एक बताऊँ आलिम सर? इतनी समझती थी, ये बताइए। तो आप जी हम बता दें आपको सर, 2 मिनट। हाँ, सर 2 मिनट। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी सर आप सवाल कर रहे हो। सवाल करने वाला ही बंदा बहुत अच्छा लगता है, और आप से बात करके अच्छा भी लगा। जो आपने पहले कह दिया, मोहब्बत से बात करनी चाहिए। ये आज से कबलन 120 या 130 या 140 साल पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब विक्टोरिया का दौर था, जब अंग्रेजों का वक्त था, तो जब मुसलमान एक साथ नबी का मिलाद मनाते थे, जब जुलूस लेके निकलते थे, तो अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। तो उन्होंने सोचा कि ये किताबों में मौजूद है सर, और ये विक्टोरिया की किताबों में मौजूद है, और एक किताब है तख्तुल रशीद अहमद गंगोई की, उसमें भी मौजूद है। जी मैं बता रहा हूँ, और आपको गलत हवाला लगे तो मुझे सामने बुला के कत्ल कर देना। सर मैं 2 मिनट बोलूंगा, फिर आप समझना आपका काम अम्मा अलैना इल्लल वल्लाह। के उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों पर हुकूमत कर ही नहीं सकते जब तक इनके दिलों में नबी की मोहब्बत है। हम मुसलमानों पर हुकूमत कर ही नहीं सकते जब तक इनके दिलों में नबी की मोहब्बत है। अगरचे मुसलमानों पे हुकूमत करना है तो इनके दिलों से इनके नबी की मोहब्बत को निकालो। ये अंग्रेजों का कहना था। तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में ही इनकी हुकूमत थी, तो दिल्ली के अंदर उन्होंने बड़े बड़े मौलवी खरीदे गए। और तुम इससे पहले के उनके फतवे सुनना, देखो अशरफ अली थानवी जी के फतवे ऐसे हैं, एक किताब है उनकी, कि नबी के मजार को कब्र भी ना कहा जाए,
क्योंकि कब्र का कहना नबी के एक मुर्दा होने की तरफ ख्याल जाता है, और नबी को मुर्दा कहना बहुत बड़ा गुनाह है, सोचना भी नहीं चाहिए। ये भी अशरफ अली थानवी जी का है। और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन के नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। उसके बाद जब 600 रुपए महावारी किताबों में मौजूद है, तुम बड़े बड़े आलिमों से जो डिबेट होते हैं ना आमने सामने बैठ के, आप वो सुने, मेरी न सुने, और ना मैं कह रहा हूँ कि मेरी सुनो आप, ना मेरी मैं बोल दूं आप मान ले, ऐसा भी ना सुने। और रही बात कि शरीक और कुफर मज़ारों पे जाने का, इन सब का इख्तिलाफ ही नहीं है सर। हमारी जो लड़ाई है इन सब का इख्तिलाफ ही नहीं है कि हम मज़ार पे हम फातिहा पढ़ते हैं तुम नहीं पढ़ते, हम इसका कोई इख्तिलाफ नहीं। पूरी अहले देवबंद न्याज ना करे, फातिहा ना करे, मिलाद ना पढ़े, कुछ भी ना करे, हम इस पे कोई कुफ्र इस्लाम फतवा नहीं लगाते। जो नबी की बेअदबी है सिर्फ उस पर सर, एक किताब में आपको बताऊंगा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मलकुल मौत और शैतान का इल्म रसूलुल्लाह के इल्म से ज्यादा है। तो ये ऐसी वैसी किताबें नहीं है। अब आपने जो बात बोली बहुत अच्छी लगी कि एक कोई सादा सा मुसलमान नहीं लिख सकता, इतना बड़ा आलिम ने क्यों लिखा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात लगी आपकी, क्योंकि मैंने बताया ये अंग्रेजों के दौर ही में ये किताबें लिखी गई हैं, इससे पहले इन किताबों का वजूद भी न था। और जो सऊदी अरब पे जो वहाबी हुकूमत आई, ये भी अंग्रेजों के साथ मिलके, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ें। और ये मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी, इसने मुसलमानों को वहां पे मदीना शरीफ और हरम शरीफ में नमाज पढ़ते पे काटा था और कहा था ये सब मुशरिक है। और मेरे आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुझे उस शख्स का खौफ है अपनी उम्मत पे जो इस्लाम की चादर ओढ़े हुए होगा, और वो इस्लाम से ऐसे निकल जाएगा जैसे कि दूध से मक्खी, इस तरीके से इस्लाम से निकल जाएगा, और वो अपने पड़ोसी मुसलमान पर तलवार खींचेगा और उन पर शिर्क के फतवे लगाएगा। तो उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को मुशरिक कह के कत्ल कर दिया था कि वो नबी से वो या रसूलुल्लाह की मदद मांगते थे, कहते थे। तो ये कहकर उन्होंने नबी को कत्ल किया था। उन्होंने कहा था ये सब मुशरिक है। तो सारे जन्नतुल बकी में जो मजार शरीफ थे वो भी सब ढा दिए जी। और मैं बड़े बोल से तौबा कहता हूँ, जो कब्रें और मजारे तोड़े हुए तो सर, और अशरफ अली थानवी जी का भी है और इस्माइल देहलवी का भी। इस्माइल देहलवी को गैर मुकल्लिद भी मानते हैं, और शहीद अहमद को गैर मुकल्लिद भी वो शहीद अहमद को देवबंदी साहब मानते हैं, और रशीद अहमद को भी देवबंदी साहब मानते हैं, और हसन भोपाली इसको गैर मुकल्लिद मानते हैं। तो गैर मुकल्लिद को भी मजार बने हुए हैं, इस्माइल देहलवी का भी है, हसन भोपाली का भी है भोपाल में, और इस्माइल देहलवी का पाकिस्तान में, अशरफ अली थानवी का भी यहाँ पर है। तो इन सबको मेरे कहने मतलब ये है, जब वो जन्नतुल बकी में नबी की बीवियों का मजार तोड़ा गया, नबी के बेटों का मजार तोड़ा गया, नबी के असहाब का मजार तोड़ा गया, उस्मान गनी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजारों को तोड़ा गया, मगर अपने ये मजार बना के रखे हैं और बहरहाल पक्के हैं। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं और देख लें आप। सर मेरा आपसे बहुत मोहब्बत से वो है कि मैं कोई आलिम नहीं, मैं एक लड़का हूँ, मेरा इसी नंबर पर व्हाट्सएप चालू है, आप देखना चाहते हो मेरा फोटो देख लोगे। तो मैंने इसीलिए कहा था कब तक हम लड़ेंगे सर, एक नहीं हो सकते। सामने वाला किस तरीके से हमें क्या, हमें कोई मतलब ही नहीं, मजार पे जाओ या मत जाओ, न्याज जरूर फातह करो मत करो, ये एक ईसाल सवाब है। मिसाल बतौर कि एक सहाबी हमारे नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, कहा हमारी माँ फौत हो चुकी है, क्या हम उसे सवाब पहुंचा सकते हैं? मेरे आका ने कहा क्यों नहीं, अगर मुसलमान है तो पहुंचा सकते हो। मेरे आका ने फरमाया अगर काफिर या मुशरिक है तो उसे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, और मुसलमान है मोमिन है तो फायदा पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा कि अपनी माँ की कब्र पे चले जाओ और वहां जाके इसलिए सवाब करो। तब उन्होंने कहा मेरे आका मुझे मेरी माँ की कब्र ही नहीं पता। तो कहा कि ऐसा है, तो आका ने कहा कि अपने घर जाओ, एक कब्र की तरह एक दायरा खींचो और पैरों की जानिब खड़े होकर वहां पे इस सवाब करो। और उनका नाम था हजरत सास, सहाबी थे, और नबी ने फरमाया और सबसे बेहतरीन इस सवाब ये है कि एक कुआं खुदवाने,
मुसाफिरों के लिए पानी पीने के लिए। जो भी इससे पानी पिएगा सवाब आपकी माँ को मिलेगा। यानी मरने के बाद भी मोमिनों को फायदा पहुंचता रहता है, इसीलिए हम जो हर जुमरात को गरीबों को खाना खिलाते हैं, हर सुन्नी के घर से खाना खिलाया जाता है। ये बात जी। अरे थोड़ा स्लो हो गए, थोड़ा धीरे धीरे बोले और एक एक करके जाए अपने। हेलो भाई, अरबाज भाई, मैं ये नहीं कह रहा सर, तुम मेरी बातों पे एकदम आंख बंद करके भरोसा कर लो। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, तो आप खुद भी तहकीक करें। मैंने जो बताया, अगर ये पहले तो तुम मुनाज़रे सुनना ऐसे जिसके सामने भी बैठे रहो लोग, और जो बड़े बड़े आलिम जिसको सुनने से किसी को फायदा होता हो, वो आलिम, और कान में सामने मध्य मुकाबल वाले आलिम, इन्हें जब सुनोगे तुम तो माशाअल्लाह तुम्हारे इल्म में भी इजाफा होगा। और मिसाल दूं सर, कुरान पढ़े हुए हैं आप सर? हाँ इंशाल्लाह पढ़े हुए ही होंगे। हेलो जी जी, हाँ जी। सूरह माइदा आयत नंबर 55 पढ़े, उसके अंदर चलो वो छोड़ो, वो तो मदद के ऊपर है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके मददगार रसूल, अल्लाह रसूल और मोमिन और फरिश्ते तुम्हारे मोमिनों के मददगार हैं। मोमिनों के मददगार तो रसूल भी है, अल्लाह भी है, फरिश्ते भी है, और वो मोमिन भी है जो जिनके लंबे लंबे रुकू होती है, मतलब उससे वली है, औलिया। औलिया का इनकार देवबंदी हजरात भी नहीं करते, वो भी मानते हैं औलिया होते हैं। जो गैर मुगल्लिद, हाँ जी, गैर मुगल्लिद इसके बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देते हैं जी। और ये इसके ऊपर है। मैं मिसाल, आप अशरफ अली थानवी जी का तर्जुमा कुरान उठाना, कुरान आपके पास में है अशरफ अली थानवी जी का? जी है मेरे पास। उसके अंदर आप, हाँ दोनों का है। हाँ जी, मैं कुछ आपको हाँ जी जी जी, अशरफ अली थानवी जी का भी और आला हज़रत का भी, तो अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें दोनों में कुछ डिफरेंस दे रहा हूँ, आप लिख लें, लिख रहे हैं आप? कौन सा आयत बताइए यार, सूरत और आयत बताइए। हाँ सूरत आयत बता रहा हूँ। सूरत है सूरह मोमिन। सूरह मोमिन, एक सेकंड रुको। हाँ ऑर्डर है ना, लेना है आपके से। मैं बेटे लेने ना, चुप जा, अभी चल दूर जाकर बैठ, चल। हेलो अब थोड़ा शांत होकर बात करो, 2 मिनट का। हेलो, हाँ हेलो सर। हाँ सूरह मोमिन आयत नंबर 55। आयत नंबर 55। हाँ जी जी, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें उसका, अगर मोबाइल में हो तो हाँ स्क्रीनशॉट ले लें उसका, मिलेगा आपको? किसका? हाँ सूरह मोमिन मिल गई। हेलो, आप पर नहीं है? हाँ मेरे पास भी है सूरह मोमिन, आपने खोल ली? नहीं आप खोलो, कोई बात नहीं। हाँ सूरह 55 आयत नंबर 55 निकाले। मैं देख ली ना, बस कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं, बात कर लूंगा। हाँ आप देख लें, एक और ले लें सर, ठीक है? सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19। सूरह मोहम्मद, हाँ आयत नंबर 19, इसको भी स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है? मैं आपको कुरान खुलूंगा ना। हाँ जी जी, आप बहुत अच्छी बात होगी जो आप भेज देंगे मुझे। और सूरह फातिह आयत नंबर 2, फतेह। सूरह फतह, हाँ आयत नंबर 2, यानी आयत नंबर 2। सूरह फातिह या फतह? हाँ फतह, वो कुछ फतेह बोलते हैं, कुछ फतह बोलते हैं जी। चलो
سورہ فتح لے لیں. ٹھیک ہے جی فتحات جی. اور آپ ہاں جی نمبر 3 یا 2؟ دو یہ آیت 3 یا 2؟ آیت نمبر 2. جی اور جی اب میں اور بھی ڈفرینس دوں گا آپ کو. پہلے یہ میں نے اس لیے بتائے ہیں میں آپ کو بات کرتے روک دوں گا. ٹھیک ہے ہاں جی. اور میں سر میں بتا دے رہا ہوں اس میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے بتا دوں. ہاں اور آپ اعلیٰ حضرت کا بھی پڑھ لیں. اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اے نبی تو اپنے اگلے پچھلے گناہ کی معافی مانگ, یعنی اپنی اگلی پچھلے گناہوں کی کوتاہیوں کی معافی مانگتا رہو. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ کون کون سے آیت میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے بتائیے. دیکھو جی, تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلوں کے پچھلوں جی یہ اعلیٰ کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو. تاکہ اللہ تمہارے سبب گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. اور اشرف علی تھانوی جی کے میں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلی اور پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دے یا تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. ایسا لکھا ہوا ہے. نبی کو گناہ گار لکھا ہے سر. اور سورہ محمد میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ محمد میں بھی یہی حالت نے یہی لکھا ہے کہ اپنوں کے گناہ جو اپنے ہیں نا اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو. اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے. یہ آپ جونا گڑی کا غیر مغلدوں کا بھی ترجمہ بھی بہت خطرناک ترجمے. میں نے یہ کسی نے مجھے بتایا تو میں نے پڑھے, میں ڈر گیا. جب سے ان کے ترجمہ میں نے پڑھنا ختم ہی کر دیے. میں فی الحال پھر میں کنز الایمان ہی پڑھتا ہوں جس کو اہل دیوبند اپنے منہ سے کہتے ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جہاں کتب خانہ ہے, وہاں قرآن کنز الایمان چھپتا ہے اور دیوبند کی اس میں چھپتا ہے یہ قرآن. ان جو 3 آیتیں میں نے بتائی ہیں, آیتیں اور بھی بھیج دوں گا آپ کو, وہ الگ الگ. ایک آیت میں تو لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام معاذ اللہ رب العالمین گمراہ ہوئے اور اللہ کی نافرمانی کی. لیکن مسلمانوں کا کہنے مطلب یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام, حالت کا ترجمہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی. وہ سب جانتے ہیں جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا, جس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے. جو اجتہادی خطا ہوئی اور جو راہ چاہی تھی وہ راہ نہ پائی. اور انہوں نے لکھا کہ آدم علیہ السلام نے نبی کا وہ اللہ کی نافرمانی کی, یعنی اللہ کا نافرمان لگا, پھر کہا گمراہ. ان کے لیے گمراہ بھی لکھا ہے. وہ بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ 3 آیتیں کا ترجمہ آپ پڑھ لیں اور اعلیٰ حضرت کا ہی پڑھ لیں, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. جی ٹھیک ہے, ماشاء اللہ آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. میں یہ نہیں کہتا, آپ کو جو کتاب بتاؤں گا اور آپ اسی کا ڈفرینس پڑھنا سر. میں چاہتا ہوں ہم دونوں ایک ہو جائیں سر. یہ سارے مسلمان دن پہ دن ادھر ادھر انہی باتوں میں ذلیل ہو رہا ہے, بات پہ مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے سر. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ.